اسی کے جلالی بابرکت اور فاتح نام میں آپ سب کو خدا کے لگے ہوئے تخت کے نیچے اس حضوری میں خوش آمدید کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ممکن کیا کہ ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہاللیلویا۔ میرا دل خوشی سے بھرپور ہے، اتنی گواہیوں سے میں سمجھتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ اور موجود ہوں ہماری زندگی میں، لیکن وقت آنے پر ہم نے بھی سنا ہر ایک کو موقع ملے گا تیار رہا ہے گواہی دینے کے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے جب مجھے موقع ملا ہم غور کر رہے تھے کس پہ؟ مبارکبادیوں پر، اور آج کی 7ویں مبارکبادی اس کے بعد ایک اور ہے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس چیپٹر کو وقتی طور پر کلوز کریں گے، لیکن ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے پچھلے 2 سنڈے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پچھلے سنڈے کیا دیکھا تھا؟ مبارک ہیں جو پاک دل ہے، اور 3 مبارکبادیاں ہیں جو دل کے مطابق، دل کے حوالہ سے ہیں، جو دل کے قریب ہیں۔ ایک جو سب سے پہلے تھا دل کے قریب، پھر رحم دل، اور پھر اس کے بعد پاک دل۔ اور آج ہم we're gonna dive into it's all about peacemaker. Let's open our Bibles. Let's dive into scripture today. Hallelujah. اور میں چاہوں گا سسٹر سمیرا متی 5 باب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت نکال لیں۔ اس کے بعد پاسٹر خالد یسایہ 9 باب اور اس کی 6 آیت نکال لیں پلیز۔ جو حوالے میں بول رہا ہوں آپ لوگ تیار رہیے گا، جب میں بولوں گا تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تیسرا حوالہ رومیو 5 باب اور اس کی 1 آیت، میں بچوں کے لیے بھی دہرا دیتا ہوں، میتھیو چیپٹر 5 verse 9. Second one is Isaiah chapter 9 verse 6. Third one is Romans chapter 5 verse 1. پھر اس کے بعد پاسٹر نعیم سے میری درخواست ہے کہ وہ کلسیوں 1 باب اور اس کی 20ویں آیت نکال لیں۔ کولوسیانز چیپٹر 1 verse 20. اور ایک آخری اور لاسٹ حوالہ میری درخواست ہے بچوں میں سے، جینیسس چیپٹر 50 verse 20. آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، جو بھی نکال دے گا پھر اس کے بعد ہم اسے پڑھ لیں گے۔ پیدائش 50 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اور آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے میرے عزیزو، وہ ہے متی 5 باب اور اس کی 9ویں آیت، میتھیو چیپٹر 5 verse 9. جیسس خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ کیا ہم تیار ہیں؟ ہاللیلویا۔ ہم اس کے روح کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے کلام کے لیے تیار ہیں، ہم اس کی باتوں کے لیے تیار ہیں۔ ہاللیلویا، پریز جیسس۔ انگلش میں بچوں نے نکال دیا جی بیٹا، جینیسس سوری میتھیو چیپٹر 5 انگلش میں اگر کسی نے نکالا۔ Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے اگر
हम सुलह कराने वालों में से। कौन सी मुबारकबादी है? 7वीं मुबारकबादी। 7 का आदत कंप्लीशन का आदत है। 7 का आदत कामलियत का आदत है। नंबर 7 is number of completion. Hallelujah. मुझे खुशी हो रही है कि मुझे जो है वहां से हमिंग और जवाब आ रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही रहे। जहां आमीन कहने की जरूरत है, जोर लगाकर आमीन कहिएगा, क्योंकि आमीन जब आप कहते हैं तो वो आप ईमान से उसे रिसीव करें। हालेलुया, प्रेज जीसस। मेरे अजीजों, बात करते हैं सुलह की। क्या आज हमें दुनिया में सुलह नजर आ रही है? जगह जगह, मुल्कों में, घरों में, रिश्तों में हमें झगड़े, मुश्किल, परेशानियां जो है वो नजर आ रही हैं। बेसुकूनी है। क्या है? बेसुकूनी है। और लोग दौड़ रहे हैं कि उन्हें कब, किस वक्त अपनी जिंदगियों में पीस मिल जाए। They are after peace. वो इतना थक चुके हैं, वो इतना जो है घबरा चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जहां भी नजर उठाते हैं प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स है, घरों में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स है, कलीसियाओं में प्रॉब्लम्स है। हम दुनिया में, मुल्कों में चले जाएं, वहां प्रॉब्लम्स है। लेकिन लोग इस बात पर गौर करना छोड़ चुके हैं कि इन सब का छुटकारा एक ही जगह से है, और वो कौन है? यीशु मसीह। वो हमारा खुदा है। अब्रानी जुबान में there is a word in Hebrew, shalom. शालोम अब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब क्या है? सलामती, पीस, अमन। ये जितना हमें सिंपल लग रहा है, अज़रूह बाइबल इतना सिंपल ये है नहीं मेरे अज़ीज़ों। क्यों? लफ्ज अमन का कह देना, सलामती का मुंह से निकल जाना काफी नहीं है। इसको अमली जामे में हमें नजर आना चाहिए। हमें इसे अमली जामे में देखना चाहते हैं। आज हर शख्स कोई झगड़ा, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आ जाए तो उसका एकदम से ध्यान हटता है, यार कदों मुके गया दौड़ा। हाँ जी, कदों इना रगड़िया जो सी बाहर आवांगे, कब हम इन चीजों से आजाद होंगे? तो मेरे अजीजों, कई हजार साल पहले यीशु मसीह ने मुबारकबादियां कहते हुए इस बात का ऐलान कर दिया था कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। जो लोग झगड़ों को देखते हैं वो झगड़ों में शामिल हो जाते हैं। वो कहते हैं घट पुआरा प्यार ज्यादा पुआ के छड़ांगे। इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह का कहना यह है कि मुबारक बनना है तो सुलह कराने वाले बन जाओ। क्या बन जाओ? हालेलुया। और मेरे अजीजों, जो मैं बात कर रहा था, अज़रूह बाइबल, अमन, सलामती, शालूम, ये मुकम्मल उस वक्त होता है जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। जब हम यीशु मसीह की कही बातों को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, हम फिर मुकम्मल भी हो जाते हैं। हम खुदा के साथ मेल मिलाप भी रख लेते हैं। हमारे अंदर हम आंगी भी आ जाती है, हमारे अंदर ईमानत भी आ जाती है, हमारे अंदर मोहब्बत भी नजर आने लगती है। हम खुदा के साथ राब्ते में आ जाते हैं, हम उसके ताल्लुक में आ जाते हैं। और जब हम उसके ताल्लुक में आ जाते हैं तो फिर हम मुबारक हो जाते हैं, क्योंकि हम सुलह कराने के दर पे। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। अगर बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, वर्ल्ड इज आफ्टर पीस, येट conflicts, division and unrest seems constant. बात समझ में आ गई कि हम सलामती को तो ढूंढ रहे हैं, हम शालूम को तो मांग रहे हैं अपनी जिंदगियों में। हम कहते हैं वो यहोवा शालूम है, वो अमन का शहजादा है, यसाया।
9 बाब और उसकी 6 आयत। जी पास्टर खालिद साहब। कलाम में से मुकद्दस कलाम में पुराना अहदनामा मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुलद हुआ और हम को एक बेटा बख्शा गया कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीम मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या है? उस लड़के के बारे में बात हो रही है जिसके लिए कहा गया है, क्या है वो? उसका नाम उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, और क्या है वो? सलामती का शहजादा। हालेलुया, प्रेज जीसस। जोरदार तालियां उस सलामती के शहजादे के लिए, जोरदार तालियां उस सलामती के शहजादे के लिए। और जो शहजादा हमारी जिंदगियों में आ गया जन्म लेकर इस दुनिया में, वो वही है जो कह रहा है मुबारक है वो जो सुलह कराने वाले हैं। यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया ताकि क्या करे? सुलह करा दे। जो गुनाह के वसीला से राबता टूटा हुआ था खुदा के साथ, जिसके वसीला से लोग गुनाह आलूद हो चुके थे, जिसके वसीला से कोई ऐसा राबता नहीं था, कोई ऐसा जरिया नहीं था कि वो खुदा को वापस पा लेते। खुदा ने कई अंबिया कराम, कई खादमे दीन, कई लोग भेजे ताकि वो खुदा को जान ले, उसे मान ले, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो क्या हुआ? फिर खुदा ने उसे भेजा जो सलामती का शहजादा है। हालेलुया, प्रेज जीसस। मेरे अजीजों, वो खुदा जो चाहता है कि दुनिया में सुलह ही सुलह हो, उसका बेटा जब दुनिया में आया, क्योंकि वो सुलह कराने वाला था, वो सुलह कराता है। और यहाँ पर क्या मिलता है? क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सुलह कराते हैं। और यीशु मसीह ने भी यही काम किया कि वो सुलह करा के खुदा के साथ राब्ता बहाल करके मेल मिलाप को जो है वो उसने दोबारा जारी और सारी कर दिया, और जिंदगियों में हम आहंगी आ गई, यगानगत आ गई। खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगी में सुलह कराने वाले के सबब से आ गई। हालेलुया। और वो ही यीशु मसीह मुबारकबादियां कहते हुए साथ में मुबारकबादी को कहता है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। मैंने क्या कहा था? आज 7 का अदद कामलियत का है, और ये 7वीं मुबारकबादी जो है वो जब एक दूसरे के साथ सुलह हो जाती है तो मैंने शालूम के हवाले से कहा था कि वो सिर्फ एक अमल का जो है वो उसका मीनिंग नजर आता है, लेकिन गहरे तौर पर वो मुकम्मलपन है खुदा के साथ, क्योंकि हम उस कामिल करने वाले यीशु को तकते हैं, और जो तकता है वो खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर सुलह का हालेलुया, प्रेज जीसस। रोमियो 5 बाब और उसकी पहली आयत, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1। बस जब हम ईमान से रास्त ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। किसके वसीला से? सुलह किसके वसीला से? रास्तबाज किसके वसीला से ठहरे? ईमान के वसीला से। ईमान से हम रास्तबाज ठहरे, और यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगी में क्या आ गई? सुलह आ गई। तो मेरे अजीजों, सुलह का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस, प्रिंस ऑफ पीस। हर जगह झगड़े रगड़े हैं, लेकिन मेरा यीशु जहां खड़ा हो जाता है वो प्रिंस ऑफ पीस बन जाता है। वो खुद भी खड़ा होता है, और आज सामने के अंदर कैसी भी खड़ी है जी, ताकि हमारे हम वसीला बन सकते हैं। काम उन्हें करना है, लेकिन हमने क्या करना है? हमने वसीला बनना है।
और जब हम वसीला बनते हैं तो हमारी जिंदगियों के वसीला से, क्योंकि ताल्लुक जो खुदा के साथ है जब वो शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता है, राब्ता भी बहाल होता है, रिश्ते भी कायम हो जाते हैं, मेल मिलाप भी आ जाता है, और उसके साथ साथ ना रिश्ता टूटेगा, ना मेल मिलाप टूटेगा, ना हम एक दूसरे से जुदा होंगे। क्यों? क्योंकि राब्ता करवाने वाले वो सुलह के फरजांद हैं। हालेलुया। Praise Jesus। कुलसियों पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में जो लिखा है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। हालेलुया। किसके वसीला से? यीशु के वसीला से। और यीशु ने सुलह कैसे करी? हाँ जी, अपना खून बहाकर, सलीब पर चढ़कर उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। हमारी जो किसी भी लिहाज से शर्मिंदगी थी उसने उसे अपने ऊपर ले लिया। गो के हम खुदा से दूर थे, हम खुदा के पास नहीं आ रहे थे, या इस गुनाह के वसीला से एक गैप आ चुका था, एक दरार पड़ चुकी थी। देयर वाज अ खलीज के हम जो है खुदा के राबते में नहीं थे। यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर उस बात को जो यशाया नबी के मार्फत लिखा गया है 9वें बाब और उसकी 6ठी आयत में कि वो सलामती का शहजादा है, उसने सलीब पर चढ़कर खुदा के साथ सुलह करवा दी ताकि इस बात को पूरा कर सके कि वो सुलह कराने इस दुनिया में आया था। हालेलुया। निजात का बंदोबस्त भी किया और उसके साथ साथ कुलसियों 1 बाब और उसकी 20वीं आयत के मुताबिक उसके खून के वसीला से हमें सुलह भी मिल गई। हालेलुया। और उस सुलह में जब हम कायम होते हैं तो मेरे अजीजों तभी हम मुबारक कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि सुलह कराने वाले का किरदार जो है वो कैसा होना चाहिए। सुलह कराने वाला झगड़े से भागता नहीं है, ते विच वड़ के खराबी भी पैदा नहीं करता। सुलह कराने वाला झगड़े में खड़ा होकर ब्रिज का काम करता है, और जो नाइतफाकियां होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उस रिश्ते में दरार पैदा कर रही हैं, सुलह कराने वाला खड़ा होकर दोनों पार्टियों को आपस में जोड़ देता है। और ये है असल सुलह कराने वाला। वो नहीं जो विच बह के उधर भी सुन के उधर भी सुन के इधर भी सुन के उधर दसे उधर भी सुन के इधर दसे, वो सुलह कराने वाला नहीं है। हमें सुलह कराने वाला बनना है तो हमें अगर मुबारक होना है तो हमें खुदा की, यीशु मसीह की उस सुलह को जो उसने सलीब पर चढ़कर हमारे लिए की थी उसे अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। आज रिश्ते टूटते होण ते लोकी मजीद कहंदे छड़ दिओ कोई गल की फर्क पैंदा है। जो खुदा के कलाम से वाकिफ है वो ना तो किसी का जो किसी को तोड़ेगा, ना ही किसी भी तौर पर जो है उन्हें सेपरेट होने देगा। जो खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारता है वो जिंदगियों को जोड़ कर रखेगा, और जो कलाम से वाकिफ है वो सुलह कराकर तभी बाहर निकलते हैं, वरना वो देख कर ना समझो कि असली हिस्सा ना बनी पुलिस सामने ना चुपते रहे। हाँ जी, झगड़े का हिस्सा तेरे बाद पता लगे मैं उसे पेशियां भुगतता रहा। जो खुदाई खौफ के अंदर मौजूद है मेरे अजीजों, वो इन बातों को सोचते नहीं है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि मेरा खुदा जिसको मैं मानता हूं, जो सुलह का शहजादा है, वो मेरे साथ खड़ा है, और जहां मैं जाऊंगा वो मेरे साथ जाएगा, बशर्ते कि मैं उसकी जो है कहे के मुताबिक चलूंगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जो इन बातों पर गौर करता है, जो किरदार निभाता है, वो जो रोल प्ले करता है कि वो अवॉइड नहीं करता किसी भी झगड़े को, वो उसमें खड़ा होकर ब्रिज का काम करके दोनों को वापस या खानदानों को वापस एक जगह खड़ा कर देता। तलाक तक गल नहीं पहुंचने देते, वो सेपरेशंस तक बात नहीं पहुंचने देते, वो
खानदानों में और ज्यादा दरारें पैदा नहीं करते हो। कहते हैं तिज्जा बंदा आवे तो तादी काम ज्यादा भी करता है, लेकिन वो तिज्जा बंदा अगर खुदा वालों होवे तो फिर काम बिगड़न नहीं देता, झगड़ा बदन नहीं देता, बल्कि वो उस झगड़े को खत्म करके जो है एक नए जोर के साथ एक नई कुव्वत में उस रिश्ते को बहाल करना है। हालेलुया। ये है काम किसका? सुलह कराने वाले का, जो खुदा के बेटे बेटियां। हालेलुया। 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 जोरदार तालियां इस बात के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया। तो बात करें अगर हम, मैंने बहुत शुरू में कहा था कि 3 हिस्सों में डिवाइड है। हाँ जी, ये खसूसियत है, फिर उसके बाद एक्शन है और उसके बाद प्रॉमिस है। हाँ जी, जो सुलह कराते हैं उनकी जिंदगी में प्रॉमिस क्या होता है कि वो खुदा के बेटे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदा के बेटे और बेटियां कहलाना ये सिर्फ हमारी पहचान ही नहीं, बल्कि ये हमारी जिंदगियों में गवाही भी है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम इस सुलह के वसीला से हम खुदा की शान को, खुदा की ताबेदारी को, खुदा के हजूरी को, उसकी मामूरी को जाहिर करते हैं, और इससे पता चलता है कि हम खुदा के साथ कितने। हालेलुया। मुझे बड़ी खुशी है आज। Hallelujah. प्रेज़ हालेलुया। Amen. अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। हालेलुया। जोर से। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का रूह जोरों से काम कर रहा है। खुदा का रूह यहाँ पर है। वो एक एक रूह और एक एक जान को छुए हुए है। मेरे अजीजों, आज अपने अपने दिलों पे इस बात को नक्श कर लीजिए कि हमारी जिंदगियों में वो खुदा है जो सुलह का शहजादा है। हमारी जिंदगियों में वो बादशाह है जो हमें बहाल करने के लिए आया है, जिसके वसीला से हम नहीं रहे, बल्कि हम में वही वो नजर आता है, क्योंकि वही हमारी पहचान और वही हमारी जो है गवाही है। हालेलुया। उसके वसीला से हमारी जिंदगियों में अगर शान है, इज्जत है, दौलत है, बढ़ोतरी है, अगर हम शान और शौकत में रहते हैं, तो ये हमारे इसमें मैं समझता हूँ कि कोई खासियत नहीं है। खासियत क्या है कि वो ज़ाते इलाही हमारी जिंदगियों में शामिल हो चुका है। हालेलुया। प्रेज जीसस। अब बात यह है कि हम खुदा के बेटे भी कहलाए, ठीक है, हमें खुदा के बेटे भी कहा जाता है। हम चलते फिरते उठते बैठते उसके करैक्टर को अपनी जिंदगी में रखते हैं। हम चलते फिरते उठते बैठते हम उसकी बातों को अपनी जिंदगी में रखते हैं, और जब हम उसकी बातों को अपनी जिंदगी में रखते हैं तो हमें करने की क्या जरूरत है? फिर उसके बाद अमली तौर पर हम प्रैक्टिकली हाउ वी कैन क्रिएट दीज थिंग्स इन अस प्रैक्टिकली, हम कैसे अमली जामे तक इन बातों को, इस सुलह को पहुंचा सकते हैं। किस तरह हम इन बातों को कह देना काफी नहीं है, ये हमारी जिंदगियों में चलते फिरते उठते बैठते मुंह से बोलते चलते निकलते हमारी जिंदगियों से ये नजर आना चाहिए। कहीं डार्कनेस में हल्की सी लाइट की जो रे है, अगर वो आ जाए तो उसमें तारीकी में वो पता चलता जी रोशनी आ गई है। इसी तरह जहां खुदा के बेटे चलते फिरते नजर आते हैं, वहां पर तारीकी खड़ी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। Amen. प्रेज जीसस। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब अमली तौर पर हम शुरू करते हैं अपने रिलेशनशिप से, अपने ताल्लुकात से, कि हमें मुआफी के साथ अक्सर बेशतर मैं जान नहीं देना, हाँ जी, गल करके जाए किथे, तो सुलह कराने वाले ऐसी बातें नहीं करते। वो कहते हैं कोई नहीं गल, खुदा बंदा उसे माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या करता है। ये यीशु की तालीम है। हाँ जी, उसने अपने बाप से रिक्वेस्ट की थी कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो हम किसकी तालीम पे चल रहे हैं? यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह की तालीम क्या है? माफी, सुलह। तो मेरे अजीजों, एक्टिव लिसनर बन जाएं। कौन से लिसनर? लिसनर तो सारे ही नहीं, लेकिन एक्टिव लिसनर। बी केयरफुल ऑन दिस टर्म के एक्टिव लिसनर बनने की जरूरत है। सुन तो सभी लेते हैं, वो कहते नहीं यार एक काम जो सुनो दूसरे कर दो,
मैं कहना वा एक कान जो सुनो अगले ताला ला लो बाहर ना निकले इत्थे ही रहे ताकि जब वो वहां से निकलेगी वो इत्थों नहीं बल्कि मुंह जो बाहर निकल जाएगी। तो एक्टिव लिसनर बनकर ब्रिज बनाना शुरू करें ताकि बात सुनकर उसका सद्देभाव निकालें, सुलह कराएं, ना कि बड़ा पौड़ा पौड़े। हाँ जी, तो बड़ा झगड़ा जो है वो क्रिएट हो जाए। फिर उसके बाद अक्सर व बेशतर अपने ताल्लुकात में, अपने रिलेशनशिप्स में जब बैठे तो बाइबल कहती है ऐप जोई ना करो। क्या कहती है? बेहतर है कि अगर मेरी और सिल्विया की गुफ्तगू हो रही है तो तीसरा बंदा भी चला, हमारी गुफ्तगू कन्वर्सेशन मेरी और सिल्विया की। अगर मैं किसी और से बात कर रहा हूं तो मैं उसी के साथ इधर भी उधर करने वाला ना हुआ। और जो ऐप जोई करते हैं तो कहता है कि जो जिस पैमाने से ना कर उसी से ना जाता। हाँ जी, पैमाना सोच लें कि अगर मैं ऐप जोई करूंगा तो मेरी भी ऐप जोई की जाएगी। अगर मैं किसी के खिलाफ खड़ा होऊंगा तो मेरे भी खिलाफ खड़ा हुआ जाएगा। अगर मैं किसी के खिलाफ बोलता हूं तो लोग मेरे भी खिलाफ बोलेंगे। ये हर केस में नहीं है लेकिन मोस्टली जो है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, अक्सर व बेशतर जिथे किते कुछ भी नहीं किया होता उथे शैतान अपना ही कार्रवाई पा के निकल जाता है। हाँ जी, वो लोगों को भी खिलाफ करके निकल जाता है कि वो नहीं होते रहती गल से। तो मेरे अजीजों, अपने ताल्लुकात में मुआफी, एक्टिव लिसनिंग और ऐप जोई जो है, ऐप जोई से गुरेज करें, एक्टिव लिसनर बन जाएं और माफी को जिंदगी में रखें। फॉरगिवनेस, एक्टिव लिसनिंग एंड ट्राई टू अवॉइड एनी गॉसिप्स। फिर उसके बाद बरादरी, कम्युनिटी के अंदर हम क्या करें? हम इंसाफ, इत्तेहाद यानी जस्टिस एंड यूनिटी के साथ हम जहां रहते हैं उसको प्रमोट करें, इकाई के साथ, मसावात के साथ, इक्विटी के साथ। ऐसा नहीं कि मेरा जो मिलने का तरीकाकार, जो नापने का तरीकाकार है वो कलाम से फर्क हो। वो बातें जो कलाम में है उसको मैं अपनी जिंदगी में रखकर आगे बढ़ने वाला हूं। फिर उसके बाद हमने अपने इंडिविजुअल, अपने तौर पर हमने कैसे सुलह को अपनी जिंदगी में रखना है। और वो क्या तरीकाकार है कि हम दुआ, तौबा और खुदा के हजूर झुककर अमन मांगे। अभी थोड़ी देर पहले इसकी मिसाल हमें मिली कि कुछ हो रहा था, उसके लिए दुआ की गई है। हाँ जी, अपने तौर पर नहीं सुलझाने वास्ते नस पे चल यार लेना करके लेते हैं। नहीं मेरे अजीजों, हम खुदा से मांगे, उससे मांगे कि जो हर जगह मौजूद है उसमें हमें किसी एस्केलेशन की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी को इन्वॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। खुदा से कहे खुदावंद मैं तेरे हुजूर में झुकता हूँ, मुझे जो है वो सुलह का बादशाह बना दे, मुझे सुलह का जो है वो शहजादा बना दे, उसी तरह जैसे खुदावंद यीशु मसीह था। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही क्या है हमारी जिंदगियों में सुलह आती है और उसी सुलह में हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, अमन उसी वक्त आएगा जब हम मुआफी, तौबा के साथ खुदा के हुजूर में हाजिर होंगे और हम दुआ करेंगे। और जब दुआ करेंगे तो फिर क्या होगा कि खुदा हमें जो है वो सुलह में मजबूत खड़े रहने का शर्फ अनायत करेगा। हालेलुया। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हम बड़े पैमाने पर इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो उसमें जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि वी हैव टू बी एडवोकेट। किसके? पीस के। हमें अमन का सफीर बनने, अक्सर बेशतर हम कहते हैं जी वो जो है ये अमन और इंसाफ के जो है ये सफीर हैं। हाँ जी, जो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं तो वो जाते हैं जाके, अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि कुछ जो प्रेसिडेंट जो है वो जाकर जो है अमन को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अमन के सफीर कहलाते हैं। कैसे? वो बातचीत करके, उनके अंदर एडवोकेसी है, वो इस बात को अपने अंदर रखते हैं कि वो मुल्कों में जाकर उनका आपस में राब्ता करवा रहे हैं ताकि अमन बहाल हो, जो है सीज फायर हो जाए, जंग बंदी हो। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा जो है वो क्या है? वो प्रिंस ऑफ
पीस है, और वो यही चाहता है कि हमारी जिंदगी में जो है वो पीस मौजूद रहे। तो मेरे अजीजों, अगर हम दुनिया यानी बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं तो हम खुदा से ताकत लेकर वो दुआ के वसीला से उससे मांगे कि खुदावंद तू बख्श दे, तू अता कर, ताकि मैं जहां भी खड़ा हूं वहां पर मैं तेरे लिए बात कर सकूं, मैं तेरे लिए बड़े बड़े और गहरे गहरे काम कर सकूं। और वो कैसे होगा? वो जब हम जो है खुदा के उस सुदा के इस लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। हम कहते ज़रूर हैं कि यहोवा शालूम, वो सिर्फ कहने की हद तक न रहे बल्कि वो ज़िंदगियों में नज़र भी आए। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें पैदाइश 50 बाब जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20 और इसी के साथ मैं कलाम को बंद करूंगा। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत आयत है मेरे अजीजों। पैदाइश 50 बाब और उसकी 20वीं आयत। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसब किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनांचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बात जो है ये यूसुफ की कहानी है। और यूसुफ जो है अपने भाइयों को जब मिलता है तो वो क्या कहता है कि तुमने तो मुझसे बदी का इरादा कर लिया। लेकिन मेरा बताने का यहाँ मकसद ये है कि मेरे अजीजों, यूसुफ की आंखें खुदा पर लगी हुई थी और यूसुफ खुदा के ऊपर आंखें लगाए बैठा था। वो दुआ उससे करता था। वो कितनी मुश्किल से होकर गुजरा, घड़े में फेंका गया, बेचा गया, उसके बाद जेल में रहा, उस पर इल्जाम लगे, लेकिन उसके मुंह से कोई भी एक ऐसी बात ना निकली जो कि खुदा के खिलाफ हो, बल्कि वो खुदा से हमेशा दुआ करता रहा। और जो लोग खुदा के राबते में रहते हैं, मेल मिलाप में रहते हैं, वो उनके साथ अगर नेकी ना भी हो, बदी का इरादा भी लोग कर लें, तो मेरे अजीजों उस बदी में से भी खुदा जो है नेकी पैदा कर देता है, भलाई पैदा कर देता है। और ये यूसुफ जो है, जो कि दूसरे दर्जे का हाकिम बना, उसने इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, उसने रिटेलिएट नहीं किया, बल्कि क्या किया उसने उन्हें माफ किया और माफ करके उन्हें अपने गले लगा लिया, क्योंकि उसके अंदर जो रूह बसता था वो सुदा के शहजादे का रूह था। किसका रूह था? सुदा के शहजादे का। तो हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह, जो जिसके लिए यशायाह ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि एक लड़का तुम्हारे लिए तवल्लद होगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का। और वही शहजादा पहले भी था, उसके बाद दुनिया में भी जन्म लेकर आ गया और अब भी मौजूद है। और वो चाहता है कि हम अपना दिल उसे दे दें ताकि वो सलामती का शहजादा, अमन का शहजादा, पीस ऑफ प्रिंस हमारी जिंदगियों में रहे और हम उसके मुताबिक जिंदगियां गुजारने वाले हों। मेरे अजीजों, सुदा कराना आसान नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये मसीही शागिर्दियत को शो करने का एक तरीकाकार है कि हम उसके शागिर्द हैं जो सुदा का बानी, जो सुदा कराने वाला, जो सुदा का शहजादा है। खुदा आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत दे।